दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए पैसेज है कि अब प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th century. Children became critical for the publishing industry as children's parents devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. This press published new works as well, told fairy tales and folk tales. The the Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812. Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elite. Elite was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form. In this way, print recorded old tales but also changed them. Women became important as readers as well as writers. Penny magazines were especially meant for women as manuals teaching proper behavior and housekeeping. Novelists in the 19th century saw women as important readers. Some of the best known novelists were women. The Bronte sisters, उसके बाद है elite. Their writings became important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination and power to think. उसके बाद देखिए क्या था lending libraries were in existence from the 17th century onwards. In the 19th century, leading libraries in English became instruments for educating while collar works or artisans and lower middle class people, sometimes educated working class people, wrote for themselves. After the working day was gradually sorted from the mid 19th century, workers had sometimes for self improvement and self expression. They wrote political tracts and autobiography in large numbers. अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स आर नॉट मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो सपोर्टेड पब्लिकेशंस फॉर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो है ये जो है बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट देखिए कहता है कि द न्यू टाइप ऑफ वुमन डिफाइंड बाय द 19th century वुमन नोवेलिस्ट्स। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, वॉज स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड एंड इंटेलिजेंट। इन दिस सेकेंड para, new type of woman was defined
as persons with will, strength of personality, determination and power to think. Next क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखिए सी ऑप्शन यानी पीपल इन रिमोट एरियाज। तो देखिए लैंडिंग लाइब्रेरीज बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग वाइल कॉलर वर्कर्स, ठीक है, artisans and lower middle class people, but it is not maintained about people in remote areas. नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 4 में देखिए 4 में है यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा, यानी बोथ एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। कहता है कि रिडक्शन इन वर्किंग hours give workers time to read and improve their job prospects. Be a compulsory primary education increased the demand for textbooks. तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है कि which of the following words means the same as the word vulgar as used in para first of the passage। तो 5 में देखिए वल्गर, इसका अर्थ होता है अशिष्ट। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अशिष्ट होता है, ठीक है, या फिर असभ्य, अशिष्ट असभ्य, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इंडिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडिसेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम कहता है तो वल्गर का होगा इंडिसेंट, INDECENT, ठीक है। वल्गर मतलब होता है अब जो है आपको अशिष्ट असभ्य, और INDECENT इंडिसेंट मतलब होता है अभद्र। क्या होता है? अभद्र होता है, अशिष्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 6 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता वन हु कैन रीड एंड राइट। तो देखिए 6 का होगा ए ऑप्शन यानी लिटरेट। तो वन हु कैन रीड एंड राइट यानी लिटरेट, यानी क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो साक्षर, ठीक है। वन हु कैन रीड एंड राइट ये होगा लिटरेट, ठीक है। उसका देखिए एलिजिबल, एलिजिबल मतलब होता है योग्य। एलिजिबल मतलब क्या होता है? एलिजिबल मतलब होता है ELIGIBL, एलिजिबल मतलब योग्य होता है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए फिर है ILLEGIBLE, इसका अर्थ होता है अपठनीय, अपठनीय, ठीक है, एलिजिबल। और यहाँ पे भी है एलिजिबल, ठीक है। ILLE यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो ILLEGIBLE, इस एलिजिबल का अर्थ होता है अपठनीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डॉट एक्ट्रेस। देखिए यहाँ पे है एक्ट्रेस, ठीक है, तो वोवेल साउंड से शुरू होता है। देखिए एक्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एन एक्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि हिंदी का उच्चारण यदि अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है, ओ औ, यदि हिंदी का उच्चारण इन स्वरों से हो तो उससे पहले एन लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एन लग जाएगा, बाकी के और जो शेष बचा उससे पहले ए लगा देंगे। तो यहाँ पे होगा आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस। तो देखिए एक्ट्रेस के शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वोवेल से है, इसलिए एन का प्रयोग होना चाहिए। जब किसी इंग्लिश के शब्दों का प्रथम लेटर, ठीक है, का उच्चारण अ, आ, ठीक है, ए, ऐ, ई, उ, ठीक है, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ठीक है, हो तो एन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 8 है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज एंग्री डॉट मी, ही इज एंग्री डॉट मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ही इज एंग्री विद मी होता है। क्या होता है? विद मी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंग्री विद अ पर्सन, यहाँ पे सही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज एंग्री विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे है, आपको कहता है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न को पढ़ के आंसर देना है। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया है। समाज में फैले बाह्यडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो है पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके जो है उनके आकाश तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इस प्रकार इन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर जो है सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरे को सबको दिखाया और दीन दलितों के ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधारक सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी सखियों, रेमिनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल जो है ज्ञान मार्ग खोला। क्वेश्चन है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। नेक्स्ट कहता है कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। ए ऑप्शन। ठीक है, तो कबीर ने समाज में फैले आचरणहीन ढोंगियों का खुलकर विरोध किया। फिर है कि संत कबीर ने प्रशस्त किया, तो ये ज्ञान मार्ग का। ठीक है, 11 का होगा ए ऑप्शन। तो कबीर ने ज्ञान मार्ग का प्रशस्त किया। उन्होंने कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया तथा कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में खाली स्थान खोले जा रहे हैं। ठीक है, आज प्रत्येक गांव में खाली स्थान खोले जा रहे हैं, तो विद्यालय। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, बंदरगाह तो होगा नहीं, हवाई अड्डा तो गांव में खोला नहीं जाएगा। बी ऑप्शन। तो देखिए आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट कहता दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशों में नहा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चों बारिश में नहा रही है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ठीक है, तो 13 का जो है सी ऑप्शन क्या होगा, बच्चे होगा क्योंकि प्लुरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, तो रेखांकित भाग में सही शब्द समूह है कि बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार का जो अलंकार के भेद का चयन कीजिए। कहता कि वह इष्ट देव के मंदिर की पुजारी सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन। फिर है दलित भारत की विधवा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए ऑप्शन उपमा हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए वाक्यों में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। 15 का क्या होगा, सी सबसे बड़ा परिवर्तन। तो सबसे बड़ा परिवर्तन सही अभिव्यक्ति होगा, न कि सबसे बड़ी। ठीक है, तो कंप्यूटर के आने से यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन जो है मीडिया जगत में है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी 16 नंबर देखिए, कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जीने की इच्छा। ठीक है, तो 16 का होगा ए ऑप्शन, यानी जीविसा। ठीक है, जीविसा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जीविसा। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा जिगीसा। नेक्स्ट
कहता निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो करवा घूट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 17 का सी, चुपचाप अपमान सहना। करवा घूट पीना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप जो अपमान सहना। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का विलोम आवरण। 18 का होगा ए, अनावरण। तो आवरण का अर्थ है पर्दा, ठीक है, ढक्कन होता है, ठीक है, जिसका विलोम है अनावरण। क्या है? अनावरण। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त जो है समास छांटिए। राम कहानी, ठीक है, तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष। देखिए, राम कहानी यानी राम की कहानी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, फिर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो 20 का होगा सी ऑप्शन, पानी को स्वच्छ रखकर, ठीक है। तो नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर कहना गलत है, इसके स्थान पर क्या होगा, अधिकार बताने के लिए नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर, ठीक है, कहना सही होगा। नेक्स्ट, कहता राम ने रोटी खाई किसका उदाहरण है। तो 21 का बी ऑप्शन, सामान्य भूतकाल। राम ने रोटी खाई सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। राम ने रोटी खाई ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, ठीक है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 22 का ए ऑप्शन, ब्राह्मण। तो 22 का होगा ए, सही वर्तनी वाले शब्द है ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 23 का बी ऑप्शन, क्या होगा, प्र जोर उठ, ठीक है। क्या होगा, प्र जोर उठ। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा प्र जोर उठ, यानी प्रौढ़ मूलतः बढ़ा हुआ। नेक्स्ट, फिर है कि देशज शब्द है 24 का। तो 24 की यदि बात करें तो ए ऑप्शन, झाड़ू, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा कि झाड़ू जो है ये देशज शब्द है, ठीक है। तो देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा वह शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है, जैसे बेटा, लोटा, रोटी, दाल, पैसा, लकड़ी, दारू, धुआं, चूड़ी, ठीक है, पड़ोसी आदि। आलपिन जो है ये पुर्तगाली शब्द है। आलपिन जो देख रहे हैं ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है आलपिन। और कैंची जो है ये तुर्की, ठीक है, तुर्कीय शब्द है कैंची। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करें, कहता है यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप हैं, बी ऑप्शन, निजवाचक सर्वनाम। तो यह काम मैं आप कर लूँगा, तो उपरोक्त पंक्ति में आप है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, तो निजवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, अब देखिए फिर पैसेज है कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा अभी गई, तभी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा, ठीक है, इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य जो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणाओं को न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार, एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध जो है कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान हो जाता। नेक्स्ट, कहता शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। 26 का बी ऑप्शन, शून्य मानव जनित आविष्कार है, ठीक। तो शून्य क्या है, मानव जनित आविष्कार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें,
कहता है कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। 27 का सी, शून्य एक से छोटा है। ठीक है, तो संख्याओं के संदर्भ में यह अवधारणा समझना सबसे कठिन है कि शून्य एक से छोटा है। नेक्स्ट है कि विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है। 28 का सी, भारत। तो विश्व में भारत ने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है। फिर है कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या। ए ऑप्शन, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, अमूर्त विचार का है अर्थ है कि यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा। तो 30 का ए ऑप्शन, मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना। ठीक है, ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे होगा कि मूर्त चीजों से शून्य की जो संबद्धता न होना, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होने वाला, राइट होने वाला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।